Okay. So can you see the PPT presentation? Yeah, it's clear now. Okay. So thank you so much for the invitation. I really appreciate this is an honor to present and Government Tibbi College, and inshallah I'll try my best to give the message of how someone who is like a fresher who can actually start this process of research, and from the very basics to the advanced, and how can we ultimately end up in publishing our paper. This is what is all covered in this topic, which is methods of transformation to a professional scholar. And you know my name. My name is Ghulam Muhammad Ashraf. I am working as associate professor in University of Sharjah, and I have been introduced. And thank you for the nice introduction. So let's start the journey, I will say. So रिसर्च, सबसे पहली चीज तो ये है कि रिसर्च को समझा कैसे जाए, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द रिसर्च, व्हाट डज इट मीन. सो यहाँ पे मैंने कुछ डिफिनीशंस ऐड किए हैं आप लोगों के लिए. सिंपल 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 डिफिनीशन ऐड करने की कोशिश की है, उसको देखते हैं वन बाय वन. तो द फर्स्ट सेंटेंस इज दैट द रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबॉडी हैज सीन बट टू थिंक व्हाट नोबडी एल्स हैज थॉट. तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सब लोगों ने देखा हुआ है सारी चीज़ें, कि फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ है और कोई परेशानी है, कोई एक रिसर्च टॉपिक है, बट आपको जो सोचना है वो उस तरीके से सोचना है जो किसी और ने नहीं सोचा है. You have to think in a very new way, and that is only when you can use the word research. To break it down, we call it re means repeating, search has to be repeated. So it's very obvious that for a disease, for example, like for a disease like Alzheimer's disease, we all know about Alzheimer's disease. What does it do? But if you want to do a research, you have to think in a way that no one else has thought about this, and you have to find something new, and then only it can be published and it can be appreciated by the you can say scientific world. So एक और तरीका रिसर्च को डिफाइन करने का है को एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम को चूज करते हैं दैट ओके दिस इज अ थिंग which has not been actually explored or investigated, and then we follow a path of systematic investigations to find the answers for this problem. And you can view research as the cornerstone of scientific progress, and the contributions of systematic research in progress and development in any field is what is very important. Then research is also defined as structured inquiry. हम लोग इंक्वायर करते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी नई चीज़ के बारे में, बट वो इंक्वायरी बहुत स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए. देयर शुड बी अ वेरी वेल डिजाइंड पैटर्न फॉर दैट. And in this process, we utilizes acceptable scientific methodology. This is very important. The word acceptable, because method जो हम use करेंगे अपने research के लिए, that should be accepted by the scientific world. Okay, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे in the later slides. इसमें जो सबसे बड़ी चीज आती है वो ethics है, plagiarism है, और कैसे इन चीज़ों ethics को कैसे फॉलो करना है, plagiarism से कैसे बचना है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे. And ultimately in the process, what we do is that we solve the problems and creates new knowledge which is applicable to the research community in that field of research. Some of the definitions of research, as I said. So in general, to do something new is what is called research. And फिर हम आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह, moving ahead. So कुछ और चीज़ें हैं रिसर्च के ताल्लुक से. हम रिसर्च को प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च इज नॉट सिंपली जस्ट a visit to your library and reading some of the books. Just it's not just hitting can you see the slides, all of you? Yes, sir, it's clear. Okay. So it's a process of investigation. एंड इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये नहीं है जैसा मैंने कहा कि आप लाइब्रेरी गए और आपने कुछ किताबें पढ़ ली, और आप कंप्यूटर सर्च पे गए, कुछ आपने हिट्स कर लिए. इट्स नॉट जस्ट सो स्मॉल एंड सो लिटिल. इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू हंट फॉर द ट्रुथ. सच्चाई क्या है, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, फॉर एग्जाम्पल. एंड फॉर दिस you have to do a lot of hard work, lot of, you can say,
planning before you start the research. You have to know the subject by reading extensively about the subject. You play with the ideas, then you choose the area to work upon that interests you, and then you keep on following the idea. So ultimately, research will educate yourself. It's a way to educate yourself, and you will gain more knowledge than you have had before. नाउ रीजंस ऑफ डूइंग रिसर्च, हम रिसर्च क्यों करते हैं, किस लिए हमें रिसर्च करना चाहिए, हम लोग वो डिस्कस करेंगे इन कुछ स्लाइड्स में। तो सबसे पहली चीज़ तो है, जैसे हमने कहा, कुछ नया इन्फॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए, कुछ नया इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू नॉलेज, अ न्यू फाइंडिंग, अ न्यू रिपोर्ट। एंड हम लोग ये जब करेंगे, व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फील्ड वी आर स्टडिंग एंड वर्किंग इन, वी विल एक्सप्लेन एंड फाइंड आंसर्स इन रिलेशन टू व्हाट यू परसीव, जो हम सोचते हैं उसके लिए आंसर ढूंढेंगे। एंड देन वी विल क्रिटिकली एग्जामिन अ वेरी सर्टेन फ्यू एस्पेक्ट्स, क्योंकि रिसर्च का मतलब ये है कि आप किसी एक फील्ड में बहुत डीप जाएंगे, एंड देन ओनली यू कैन से दैट आई हैव डन समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव। एंड the most important reason for doing research is to find the practical answers of a theoretical question. हमने कुछ पढ़ा, बुक में पढ़ा, क्लास में सुना, इंटरनेट पे पढ़ा, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल आंसर्स कैसे ढूंढ सकते हैं, ये जो है सबसे बड़ा रीजन होता है रिसर्च करने का। तो अल्टीमेट एम ऑफ द रिसर्च जो होता है वो, जो अगर हम इसको बहुत ही स्पेसिफिकली कहें, coming towards the specificity, so we can say that the ultimate of research is to generate measurable and testable data. एक ऐसा डाटा हम जनरेट करें अपने रिसर्च के थ्रू जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है मेजरेबल टेस्टेबल का, कि आपने कोई चीज रिपोर्ट की, द थिंग्स, द डाटा, द रिजल्ट दैट यू आर रिपोर्टिंग, इट कैन बी रिपीटेड बाय समवन इन द अदर लैब। ओके, इट शुड बी रिपीटेबल, इट शुड बी डूएबल। कोई ऐसी चीज जो रिपीट ना हो सके, जो मेजर ना हो सके, जो और लोग टेस्ट ना कर सके, दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज अ गुड रिसर्च। सो इस वजह से जर्नल्स जो पब्लिश करती हैं वो मेक श्योर करती हैं, अच्छे जर्नल्स की, जो आपने मेथड्स दिए हैं अपने रिसर्च में वो अपने आप में कंप्लीट है, एंड इट कैन बी रेसिप्रोकेटेड बाय another scientist in another lab, and in the process again there is a gradual addition of accumulation of human knowledge. Ultimately the benefit is for the human society, and we all know how research has been helping for the human health, and the best example is the quick development of vaccines in the corona period. So हम लोग चलते हैं आगे, क्या क्या जरूरी चीजें हैं रिसर्च के लिए, द एसेंशियल्स इन रिसर्च, and we will see one by one. So first of all, we have to set a goal. Okay, so once you set a goal, then okay, we set a goal. Okay, we set a goal here, and after setting the goal, you should have a very clear defined goal. जो आप करना चाहते हैं वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। और जब ये प्रोसेस हम करते हैं, ये यूजुअली हम करते हैं कुछ चीज़ों सर्च करके, लिटरेचर पढ़ के, अपने टीचर से डिस्कस करके, अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करके, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो बेसिकली एक रिसर्च क्वेश्चन होता है, उसमें हम एक बात कहते हैं जो गेस के बेसिस पे होता है। वी एक्चुअली गेस दैट ओके, आफ्टर डूइंग दिस रिसर्च दिस इज व्हाट वी विल अचीव। अब इसमें क्या है, हाइपोथेसिस में, हाइपोथेसिस दोनों तरफ जा सकता है, इट कैन बी अचीव्ड और in many of the cases it doesn't happen, but usually you should form a hypothesis, because जब hypothesis आप बनाते हैं it gives you confidence that okay, yeah, this is what we will achieve and this is something which we are doing because of this reason, and आप अचीव कर लेते हैं सेम हाइपोथेसिस, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। आप अचीव नहीं करते हैं, रिजल्ट कुछ और आता है, वो भी इट्स फाइन, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक हाइपोथेसिस बाय अ क्लियरली डिफाइंड गोल। उसके बाद वट एवर रिजल्ट दैट वी हैव उसको हम इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द रिसर्च डज रिक्वायर्ड साउंड इंटरप्रिटेशन, क्योंकि जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिसर्च के साथ वो ये है, ख़ास करके जो नए रिसर्चर्स होते हैं, जो इनएक्सपीरियंस रिसर्चर होते हैं, या वो इंस्टीट्यूट जो रिसर्च शुरू कर रहा है, उसके साथ ये होता है कि डाटा तो उनके पास होता है,
दे जनरेट द डाटा, बट दे डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट द डाटा। उसको हम इंटरप्रेट कैसे करें, उसको एनालाइज कैसे करें, जो रिजल्ट्स आए हैं उसको एक्सट्रापोलेट कैसे करें किसी बड़े पॉपुलेशन पे। फॉर एग्जांपल हमने 100 लोगों पे रिसर्च किया, तो उसको हम पूरे शहर पे कैसे एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। इसलिए साउंड इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं अक्सर कहता हूँ ये बात मेरे अपने एक्सपीरियंस से, कि एक अच्छे पब्लिश्ड आर्टिकल, और यूँ कह सकते हैं आप कि एक आर्टिकल है वो एक अच्छे जर्नल में पब्लिश हो सकता है, एक बुरे जर्नल में पब्लिश हो सकता है। जो डिफरेंस है उसमें वो इसी चीज़ का होता है, दैट इज़ डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर एक अच्छा रिसर्चर है, उसने अपने डाटा को बहुत अच्छी तरह इंटरप्रेट किया है, then that person can go and publish in a very good journal. But if the person fails to interpret the same data and the discussion is poor, then that person will struggle to publish in a very good journal. तो इसके बाद जो हम डाटा आ गया हमारे पास, जो रिजल्ट्स आ गए हैं, रेप्लिकेशन, वो जो मैंने बात कही, जो आपका मेथड होना चाहिए, इट शुड बी replicable, it should be repeatable by other researchers. And by doing that, if someone is doubting your study, okay, for example, in research there is a competition going on. You can find many labs, बहुत सारे ऐसे labs होंगे जो एक तरह का काम कर रहे होंगे, और जेलेसी भी आती है, कंपटीशन भी आता है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। बट टू बी सेफ, अगर आपने ऑनेस्टी से अपना रिसर्च किया है, एक ऐसा मेथड प्रोड्यूस किया है जो रेप्लिकेट किया जा सकता है, एंड इफ द पर्सन, इफ योर कॉम्पिटिटर इन द अदर लैब इज ट्राइंग टू रेप्लिकेट योर स्टडी, एंड if he replicates your study and he finds the similar result, then he cannot claim, he cannot say that this research is not right. So be very honest in the research, and ultimately जो हम conclude करते हैं उसमें ये होता है that all scientific research has a goal. हमारा एक टारगेट होता है, एक अल्टीमेट एम होता है, जो रिपीट कर सकते हैं हम। जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है वो बहुत रिफाइंड होता है, और इस सारे प्रोसेस में जो हमने हाइपोथेसिस जनरेट की थी उसका आंसर हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। अब मैंने पहले भी कहा कि आंसर सेम भी हो सकता है, जो आपने गेस किया था वो भी हो सकता है, इट्स ऑल्सो फाइन। जो आपने गेस किया था वो नहीं भी हो सकता है, उससे बुरा हो सकता है, उससे बहुत अच्छा हो सकता है। All the three conditions are perfectly fine. As far as you used a proper methodology, you use the sound data interpretation, and if your method can be replicated, it can be repeated successfully, your answer is acceptable to the scientific society. So these are the essentials of research, which is important. And moving ahead, अब हम लोग चलते हैं स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक प्रोसेसेस में, कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। अब ये एक ऐसी चीज़ है, जैसा मैंने कहा, कि जो लोग न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं, जो एम कर रहे हैं रिसर्च करने के लिए, उनको हेल्प करेगा। तो इसमें हम इसको इस तरीके से समझते हैं, मैं ये, जैसे मैंने कहा, मैंने कुछ कोर्सेज स्टार्ट किए हैं और काफ़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे यहाँ पे। कोई नया कोर्स स्टार्ट करने के लिए टाइम भी लगता है, और इसमें कुछ चीज़ें ऐड की मैंने काफ़ी। तो मैं इस तरीके से समझाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, आप लोगों से भी शेयर करना चाह रहा हूँ, कि जो रिसर्च का प्रोसेस होता है, द साइंटिफिक प्रोसेस जो होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आवर ग्लास की तरह होता है। आवर ग्लास का फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये स्टार्ट होता है एक ब्रॉड स्ट्रक्चर से, यहाँ पे आप ऊपर में देखेंगे, फिर ये धीरे-धीरे करके टेपर हो जाता है, ये बहुत ही नैरो हो जाता है बीच में आकर के, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद वो फिर दोबारा नीचे इसका जो है, अगेन इट बिकम्स ब्रॉड। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले जब आप रिसर्च में एंटर करते हैं तो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल आप इस ऊपर वाले पार्ट को आप मान के चले कि न्यूरोलॉजी है, एक फील्ड है न्यूरोलॉजी। अब न्यूरोलॉजी में क्या करना है, तो आप जब पढ़ते जाते हैं, आप एज अ न्यू स्टूडेंट, आपका इंटरेस्ट आया न्यूरोलॉजी पे, आप पढ़ते जाते हैं, स्लोली स्लोली कुछ और चीज़ आती है, फिर आप मूव करते हो कि न्यूरो डिजेनरेशन की तरफ, जिसमें नर्व सेल्स डिजेनरेट होना शुरू होते हैं। फिर ठीक है भाई, न्यूरो डिजेनरेशन में भी बहुत सारे डिजीजेज आते हैं, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज है, पार्किंसन डिजीज है। तो धीरे धीरे आप क्या करते हैं कि अब आप पढ़ते पढ़ते आप नैरो डाउन होते जाते हैं, और यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन वन स्पेसिफिक एस्पेक्ट। तो ये आप एरो देख रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी ब्रॉड फील्ड, you start reading, discussing with your supervisor, your lab mates, your seniors, और अल्टीमेटली आप एक क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं कि न्यूरोलॉजी में न्यूरो डिजेनरेशन, उसमें अल्जाइमर्स डिजीज में कोई एक प्रोटीन जो अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
अब फॉर एग्जांपल अल्जाइमर डिजीज का एक ऐसा प्रोटीन है जिसके ऊपर बहुत सारे पब्लिकेशंस आ चुके हैं, अगर आप भी उसी पे काम करेंगे तो दैट विल नेवर बी एक्सेप्टेड एंड पब्लिश्ड। तो अल्टीमेटली रिव्यू लिटरेचर करते करते आपको एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचना है, एक ऐसा प्रोटीन, एक ऐसा जीन, या अगर हम आपके फील्ड के हिसाब से कहें तो एक ऐसा नेचुरल प्रोडक्ट, एक ऐसा हर्ब जो अल्जाइमर डिजीज पेशेंट्स के लिए इम्प्रूव, उनमें उनमें इम्प्रूवमेंट शो कर सके। इट कैन शो इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट्स ऑफ अल्जाइमर डिजीज। एंड द गुड थिंग विद द नेचुरल प्रोडक्ट्स इज दैट दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड, क्योंकि अगर आप एक ट्रीटमेंट ऐसा दे रहे हैं जो कि हर्बल बेस्ड है, जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, that is actually well accepted. With my experience, this is something which is most well accepted in the research field. उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, फिर यहाँ से आप अपनी रिसर्च शुरू करते हैं, और जब यहाँ से आप अपनी रिसर्च शुरू करते हैं तो यहाँ पे आप दोबारा से एक पॉइंट से स्टार्ट करके सिर्फ उस पॉइंट के अंदर रह के एक जीन, एक प्रोटीन, एक हर्बल प्रोडक्ट को लेकर के आप दोबारा से धीरे धीरे करके रिजल्ट्स लाते हैं, डिस्कशन करते हैं, और अल्टीमेटली द आवर ग्लास वाइडेंस एंड यू कंक्लूड योर फाइंडिंग, एंड दिस फाइंडिंग इन देन अवेलेबल फॉर द रियल वर्ल्ड। आप पब्लिश करते हैं और पूरे वर्ल्ड में के सारे साइंटिस्ट आपके इस स्टडी को एक्सेस कर सकते हैं। दे कैन रिपीट योर वर्क, दे कैन साइट योर वर्क, दैट्स दिस साइंटिस्ट हैज, दिस रिसर्चर हैज डन दिस वर्क। सो यहाँ पे भी वही चीज़ है, इस पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बट आप इसमें ये समझ सकते हैं कि फ्रॉम ऑन द टॉप ऑफ द आवर ग्लास जो हो रहा है रियल वर्ल्ड में, द क्वेश्चंस अबाउट द बिग पिक्चर, देन यू स्टार्ट रीडिंग द कॉन्सेप्ट्स, द लिटरेचर रिव्यू, देन यू स्टार्ट चूजिंग द डिजाइन एंड द मेथड विच इज द फॉर्मेशन ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस। और फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे आके आपको पता होता है कि ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ से आप डाटा कलेक्शन शुरू करते हैं, आपको रिजल्ट मिलता है तो आप अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, फिर आप डिस्कस करते हैं अपने रिजल्ट को विद साउंड इंटरप्रिटेशन, सारे तरह के बायस एरर्स को आप यहाँ पे रिमूव करने की कोशिश करते हैं, फिर आप कंक्लूड करते हैं एंड आप उसको जनरलाइज करते हैं फॉर द फ्यूचर रिसर्च। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ रिसर्च गोज ऑन, and the next slide also shows the same thing. So background knowledge, then known facts, then there is an area of uncertainty. ये मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में रिसर्च नहीं हुई है, आपको वो एरिया चूज करना है जो आपको लिटरेचर में नहीं मिल रहा है। then you decide your aim, then the results, then the same thing again, you do the experiments, the data analysis, then your strength, limitations, and again how the future research in the same field can be supported. Okay, so this all is true, and we'll move ahead with some more things. But अब यहाँ पे आती है बात कि रिसर्च कितने तरह के होते हैं, तो इस ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये टॉपिक बहुत वाइड है, बट इसको मैंने शॉर्ट में इंटरप्रेट करने की कोशिश की है इन फ्यू स्लाइड्स। सो इफ यू सी दिस टेबल, इसमें बहुत सारे व्यू पॉइंट्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। द टाइप्स ऑफ रिसर्च फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, आप किस तरीके से देखना चाह रहे हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन के एतबार से देखना चाह रहे हैं कि कैसे अप्लाई हो रहा है, देन देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, प्योर एंड अप्लाइड। अब फर्क क्या है प्योर एंड अप्लाइड में? फर्क ये है कि जब आप बेसिक रिसर्च करते हैं जिसमें आप एक मैकेनिज्म की बात करते हैं कि अल्जाइमर डिजीज, अगर हमने ये हर्बल प्रोडक्ट अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट्स को दिया तो उन पेशेंट्स ने जब इसको काफ़ी टाइम तक खाया और उस प्रोडक्ट को लिया तो उसकी वजह से जो डिजेनरेशन है वो हॉल्ट हुई। मैकेनिज्म इसका ये है कि नर्व सेल्स का डिजेनरेशन रुका, उसके अंदर आप जाएंगे, दैट्स द प्योर रिसर्च। अप्लाइड में क्या होता है कि आप जो रिसर्च करते हैं वो डायरेक्टली इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल कंपनीज को हेल्प करती है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ड्रग, पेटेंट की बात हम करते हैं, ये सारी चीज़ें अप्लाइड में आती हैं। तो ये एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। फिर अगर आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो रिसर्च कैन बी ऑफ मेनी टाइप, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, कोरिलेशनल एंड एक्सप्लेनेटरी। तो अगेन ये बहुत वाइड टॉपिक्स हैं, बट आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं किसी चीज़ को, क्या आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्या आप किसी चीज़ को रिलेट करना चाहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं हर्बल ड्रग्स का हर्बल और नेचुरल प्रोडक्ट्स एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप इस तरीके का एक रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि दिस कंपाउंड, दिस हर्बल प्रोडक्ट is was effective in heart diseases, but this is also effective in
डायबिटीज। तो इस तरह का जो रिसर्च होता है वो कोरिलेशनल होता है, या अपोजिट भी हो सकता है कि अच्छा ये तो हार्ट डिजीज में तो इफेक्ट कर रहा है ये, बट डायबिटीज को बढ़ा रहा है ये। तो बोथ वेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर देन एक्सप्लेनेशनरी रिसर्च, कि आपने कुछ किया उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दीज आर बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स। देन एक इंक्वायरी मोड होता है, उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। तो दोनों का डिफरेंस वो ये है कि इस रिसर्च में, क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप मेजर कर सकते हैं, द क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। तो इसमें जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो नंबर्स में आएंगे, ठीक है। जैसे कि फिक्स नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल के हमने कोई ड्रग दिया और उसका, वो पेशेंट का बीपी जो है 100 हुआ करता था, 100/60 कम था, वो इंक्रीज होकर 120/80 हो गया। तो यहाँ पे फिक्स नंबर्स होंगे। और इसमें क्या होगा, ये क्वालिटी डिपेंडेंट होगी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसमें आप नंबर्स नहीं देख पाएंगे, इसमें आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च जिसको हम कहते हैं, वो क्वालिटेटिव होती है। अब मिक्स मेथड्स में क्या होता है कि इन दोनों चीजों को आप एक साथ यूज करते हैं जब, तो उसको हम लोग मिक्स मेथड रिसर्च करते हैं। तो ये एक तरीका है रिसर्च का जो बहुत ब्रॉड है। इस पे पूरे चैप्टर्स है मेरे पास, तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट दिस मच इज एनफ फॉर यू नाउ। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट, वो ये है, जो मैंने कवर करने की कोशिश की है, जो समझना ज़्यादा आसान है इंशाल्लाह। तो नाउ डेज हम 3 तरह के रिसर्च कर सकते हैं। और जो अच्छा रिसर्चर होता है, जो बड़े रिसर्चर्स हैं, जो बहुत अच्छे लैब्स में जैसे रिसर्च कर रहे हैं, वो इन तीनों तरह के रिसर्च को कंबाइन करते हैं। अभी जो तीनों रिसर्च है उसको हम बोलते हैं इन सिलिको, इन विट्रो और इन वीवो। इन सिल्को रिसर्च एक मॉडर्न वर्ड है जो पहले नहीं हुआ करता था। आप कह सकते हैं कि लास्ट 10 से 15 साल या मैक्सिमम 2 डिकेट्स में निकल के आया है। और इसमें जो होता है एक्सपेरिमेंटेशन जो होती है इसमें, इट्स प्योरली ऑन द कंप्यूटर्स। सब कुछ हम कंप्यूटर पे करते हैं, एंड इसके लिए हम लोग इन सिलिको वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स आर बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टडीज, मॉलिक्यूलर डॉकिंग स्टडीज, मशीन लर्निंग आप लोगों ने सुना होगा, और सबसे ज्यादा जो आजकल फेमस हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द चैट जीपीटी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इस तरह का रिसर्च जो कंप्यूटर बेस्ड होता है प्योरली, उसको हम लोग इन सिलिको कहते हैं। उसके बाद इन विट्रो वो रिसर्च होती है जो हम बॉडी के बाहर करते हैं, आउटसाइड द बॉडी। इसमें हम किसी ह्यूमन, एनिमल या प्लांट की बॉडी को यूज नहीं करते। प्लांट्स को भी लाइफ कहा जाता है, और यू कैन से दैट आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यू कैन से दैट। सो वी डू नॉट इंक्लूड एनी वर्क ऑन द एनिमल्स, ह्यूमंस और द प्लांट्स। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें कौन से रिसर्च आते हैं जिसमें जो आप लैब में करते हैं, लाइक यू यूज द टेस्ट ट्यूब, use the culture dish for the microbiological studies, or any elsewhere outside a living organism. It should not be inside. हम इसको इन विट्रो बोलेंगे, जैसे कि हम लैब में जो सारे वर्क करते हैं। So all these kind of works comes in the category of in vitro, and then comes the in vivo. उसका मीनिंग होता है the research which is carried out inside the living body of a plant or an animal. तो as I said, plant grows, so उनको भी living organism कहा जाता है। So if you are doing a research, animals, plants, और animals में humans भी आते हैं। So humans, animals, plant, इस तरह की सारी जो टेस्टिंग होती है, like drug testing experiments performed by the models, like models on the mice, rabbit, apes, or the human clinical trials, or anything on the plant, इस तरह के सारे काम हम लोग इन विवो में करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, जो अच्छे लैब्स हैं वर्ल्ड वाइड, जो स्टैब्लिश्ड लैब्स हैं और जो सबसे अच्छे पेपर्स पब्लिश होते हैं आज के दौर में, वो इन तीनों रिसर्च को कंबाइन करता है। सबसे पहले वो कंप्यूटर रिसर्च से स्टार्ट करते हैं, एक टॉपिक को सर्च करते हैं, जो भी अवेलेबल डाटा है उनके पास उसको स्क्रीन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक डिजीज है, डायबिटीज को हम ट्रीट करना चाह रहे हैं, हम कुछ नया ढूंढना चाह रहे हैं, कोई नया ड्रग ढूंढना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस कंप्यूटर एप्लीकेशंस को सर्च करके हम जितने भी एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं उसको हम स्क्रीन करेंगे। उसमें से आप कुछ अपने बेसिस पे जो भी आपने एम्स बना रखे हैं, बेस्ड ऑन दोज एम्स यू चूज फॉर एग्जांपल 5 anti-diabetic drugs out of 2000 available. These are examples in the computer databases. So अब जब हमने 5 चूज कर लिया आउट ऑफ 2000, अब हम उन 5 एंटी डायबिटिक ड्रग्स को इन विट्रो लैब में लेके जाएंगे। उसको हम उन पांचों को हम टेस्ट करेंगे, सेल कल्चर्स पर टेस्ट करेंगे,
और उसमें से हम 2 सेलेक्ट करेंगे बेस्ट जिसका इफेक्ट आ रहा है। अब उन 2 को हम ले जाएंगे इन विवो पे, इनसाइड द बॉडी। उसमें से हम ये देखेंगे कि क्या इफेक्ट आ रहा है, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वन। द रीजन ये है कि in vivo experimentation is the toughest experimentation. It needs a lot of conditions and the most important condition is ethical approval, जो काफी हेक्टिक होता है, काफी टाइम टेकिंग होता है। सो दैट्स व्हाई यू स्टार्ट फ्रॉम द इन सिलिको, जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आपके पास कंप्यूटर है, फंड्स हैं, पैसे हैं, सॉफ्टवेयर हैं, आप कर सकते हैं। इन विट्रो नीड्स more money, more, you can say, persons in the lab, so you can, so you can say narrow down the number of the compounds, but in vivo has to be very very specific. In vivo करने से पहले आपसे इतने सारे सवाल पूछे जाएंगे, आप ये क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये ड्रग्स आप क्यों ले रहे हैं। वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही एडवांस लेवल की स्टडी होती है। और इसमें आपको तभी करने दिया जाएगा एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, जब आप ये प्रूफ करेंगे क्योंकि दिस ड्रग फॉर दिस डिजीज हैज नेवर बीन टेस्टेड बिफोर, or even if it is tested, what we are trying to achieve is something completely new from what has been published. तो जब तक आप ये कन्विंस नहीं करेंगे एथिकल कमिटी को कि हम कुछ नया अचीव करने जा रहे हैं, they will not allow you to do this kind of research which is inside the body. तो ये एक ये टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गए जो यूजुअली हम देखते हैं, जो हमें दिखता है। हम आगे बढ़ते हैं फिर रिसर्च जर्नी पे कि कैसे करें रिसर्च। तो इसको मैंने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहले तो मैंने फेजेस बनाए हैं, जिस यू कैन से देयर आर 3 फेजेस ऑफ रिसर्च, फेज ए, फेज बी एंड फेज सी, एंड आई कॉल दिस 8 स्टेप मॉडल फॉर कैरिंग आउट द रिसर्च। सो 8 स्टेप्स होते हैं रिसर्च में, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टू द एंड। तो फेज ए में वी डिसाइड व्हाट टू रिसर्च, फेज बी में वी प्लान हाउ टू डू द रिसर्च, एंड देन फेज सी में एक्चुअली वी डू द रिसर्च, एक्चुअली वी कंडक्ट द रिसर्च स्टडीज। तो इसके अंदर भी कुछ स्टेप्स हैं। तो जो 8 स्टेप मॉडल है उसमें स्टेप 1 फेज ए में है, देन स्टेप 2, 3, 4 एंड 5 इन फेज बी, एंड देन द लास्ट 3 स्टेप्स इन फेज सी। द स्टेप 1 वी फॉर्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम, कि आखिर प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है जो हमको सॉल्व करनी है। सो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये डिसाइड करता है बाकी के सारे स्टेप्स को। अगर आपने इस पे अच्छे से वर्क नहीं किया, इफ यू डिड नॉट प्लान वेल, देन दिस इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, क्योंकि आपकी सारी टाइम, एनर्जी, आप जो फंड्स यूज करेंगे, और टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ समवन इज डूइंग अ पीएचडी, चलो पीएचडी में ज्यादा वक्त होता है, इफ यू आर डूइंग अ मास्टर्स प्रोजेक्ट उसमें 6 महीने 1 साल होता है। तो अगर आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम चूज की जो कि वेल प्लान नहीं थी, यू डिड समथिंग and you end up getting nothing, okay, yeah, you end up finding the same thing which is already published, so कोई आपका पेपर पब्लिश नहीं करेगा। that's why this is very important, and then we keep on moving ahead। so हम लोग इसको अगेन ये पूरा ये जो 8 स्टेप्स है ये पूरा एक कोर्स है, बट हम लोग एक स्लाइड देखेंगे सबका जस्ट फॉर द सेक ऑफ द टाइम। सो इसमें अब ये जो डिपिक्शन है वो ये शो कर रहा है कि किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे। सो इन द डिसाइडिंग यू हैव टू, द क्वेश्चन इज व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू वांट टू डू, कौन सा रिसर्च क्वेश्चन है जिसको आप आंसर करना चाहते हैं। इसमें एक स्टेप है, स्टेप 1। देन इन फेज बी यू प्लान, इन द प्लानिंग हाउ टू डू दिस, कैसे आप करेंगे, यू नो द क्वेश्चन एंड हाउ टू दिस, क्या मेथड्स आप यूज करेंगे, what evidences you want to gather to answer the question that you have chosen, and in the phase C the actual practical thing, डिसाइड करने के बाद, प्लान करने के बाद आप उसको करेंगे। जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आपको डाटा मिलेंगे, यू विल कलेक्ट द डाटा एंड देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। सो वन बाय वन, एज आई सेड, a single slide, I will not go into this slide a lot, that looks complicated, बट इसमें भी वही चीज़ है कि रिसर्च प्रॉब्लम बनाया, फिर डिज़ाइन क्रिएट किया, फिर डाटा कलेक्ट किया, फिर आपने सैंपल लिया, फिर आपने रिसर्च प्रपोजल लिखा, देन अगेन एक्चुअल डाटा कलेक्शन फ्रॉम योर रिसर्च, you analyze the data and then you write the research report or the research paper. So I'll skip this. You can, if there is a recording, you can go through it. And this one slide each for each step. Phase A, you are deciding what to research. Okay, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस पे you should give the maximum time
बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल रिसर्च. ओके, सो फॉर एग्जांपल आपके पास 1 साल है मास्टर्स प्रोजेक्ट में, so I'll say give at least 2 months, 3 months for this, because unless you plan this very well, all the other steps will be disturbed completely. So make sure that what you are deciding. Okay, so अब इसमें हम करते क्या है, what do you want to find out about, क्या चाहिए आपको. अब उसमें बहुत सारी चीजें आपको देखनी है कि यू कितना टाइम है आपके पास, ठीक है, तो अब कितना फंड्स है आपके पास. अगर आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, आपने रिसर्च प्रॉब्लम डिजाइन कर लिया, तो क्या इस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, इतने 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 पैसे आपके लैब में हैं, या जिस बॉस के साथ आप कर रहे हैं, डज योर बॉस हैव अ प्रोजेक्ट विच सपोर्ट्स दिस मच फंड. आपके पास टाइम है जो आपने प्लान किया है, कैन यू डू दैट वर्क इन द गिवन टाइम, फॉर एग्जांपल 6 months और 1 year. आपके पास नॉलेज है उस चीज की कि नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास, आपके बॉस के पास जो इंटरेक्शन करके डिस्कस करके जो रिजल्ट निकल के आता है, क्योंकि कोई ऐसी चीज आप करना चाहें जिसके पास, जिसकी नॉलेज नहीं है आपके पास, then again you're going to be in trouble. And finally the most important thing, the skills. क्या आपके पास वो स्किल्स हैं. फॉर एग्जांपल आपने एक रिसर्च में मेथड डिजाइन कर लिए कि इस रिसर्च में हम एनिमल स्टडी करेंगे, एनिमल्स को सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है, या फिर उसके बाद हम एलाइजा करेंगे, सन ब्लॉटिंग करेंगे. सवाल ये है कि ये करेगा कौन, क्या आपके पास स्किल्स है या आपके लैब में वो स्किल है. तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ही आपको रिसर्च प्रॉब्लम जनरेट करनी है. ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, फंड्स, टाइम, नॉलेज एंड द स्किल. ऑल फोर इज इक्वली इंपॉर्टेंट. देन ओनली यू शुड डिसाइड ऑन द रिसर्च क्वेश्चन, द रिसर्च प्रॉब्लम. फेज बी, प्लानिंग. सो एक बार आप श्योर हो गए क्योंकि मुझे, मेरा ये रिसर्च है, मैं इस पे करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, देन you start planning your research study. And in the research, in the planning, the first thing that you do is to conceptualize a research design. एक डिजाइन बनाते हैं हम इसमें, and in this what you find depends on how it was found. Okay, अब इसमें स्टार्ट करते हैं हम सही स्टडी डिजाइन ढूंढना कि आप करना क्या चाहते हैं. रिसर्च बहुत तरह के होते हैं, जैसे अभी हमने देखा प्रीवियस स्लाइड्स में. तो क्या आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करना चाहते हैं जो एक्चुअल डाटा देगा आपको इन नंबर्स, क्या आप ऑब्जर्वेशनल रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इंटरव्यू लिया, सर्वेज आते रहते हैं, कोरोना के टाइम पे बहुत सर्वेज आए, तो आपने क्वेश्चनायर बना लिया, आपने 30 क्वेश्चंस बनाए, आपने 100 लोगों को भेज दिया, सबके रिस्पॉन्सेस आपने ले लिए, वो हो गया क्वालिटेटिव सर्वे. और क्वालिटेटिव रिसर्च जिसमें आपको एक ओपिनियन मिल जाएगा लोगों का, जिसमें नंबर्स तो नहीं होंगे, बट आप यू कैन ग्रेड लाइक ओके, फॉर एग्जाम्पल हाउ सेटिस्फाइड यू वेयर. इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं तो आंसर्स होता है एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, पोरली सेटिस्फाइड. तो इस तरह के जो रिसर्च होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं क्वालिटेटिव में. और जब आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तब ये बन जाता है मिक्स मेथड. एंड जो भी आप डिजाइन कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है कि आपका डिजाइन वैलिड होना चाहिए. इट शुड बी वर्केबल, वो वर्क करना चाहिए. इट शुड बी मैनेजेबल, वो मैनेज होना चाहिए. एंड यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इसका, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है. क्योंकि कोई भी रिसर्च आप करेंगे, चाहे कितना भी अच्छा प्लान करें, उसके कुछ स्ट्रेंथ होंगे, कुछ उसके वीकनेसेस भी होंगे फॉर श्योर. ऐसा नहीं है कि आपका रिसर्च हमेशा स्ट्रांग होगा और वीक नहीं होगा, ठीक है. तो मेक श्योर आपको पता हो कि उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका वीकनेस क्या है. क्योंकि जो अच्छा रिसर्च आर्टिकल होता है उसमें जब एंड में आप ये दोनों चीजें लिखते हैं, या आजकल जो जर्नल्स, जो अच्छी क्वालिटी के जर्नल्स हैं, वो उन्होंने मस्ट कर दिया है टू मेंशन द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ योर रिसर्च, कि क्या स्ट्रांग पार्ट था और क्या कमी रह गई. इट मेक्स योर आर्टिकल वेरी गुड. और इवन दो रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं, अगर रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च थीसिस जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी सारी चीजें मेंशन करनी होती है. तो ये प्लानिंग का पहला पार्ट है कॉन्सेप्चुअलाइजिंग. दूसरा पार्ट है कंस्ट्रक्टिंग द डाटा इंस्ट्रूमेंट, कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे अपने डाटा कलेक्शन के लिए. तो यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अपने डाटा को कलेक्ट करेंगे. हाउ विल यू कलेक्ट योर डाटा. अब इसके बहुत तरीके हैं, ठीक है. जैसे कि आप इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं, मैंने कहा क्वेश्चनर्स बना सकते हैं, ऑब्जर्वेशनल नोट्स बना सकते हैं, डायरी एंट्रीज कर सकते हैं, इंटरव्यू गाइड्स कर सकते हैं. और ये वो चीजें हैं जो आपने की है, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी डाटा, जो आपने खुद से
मेहनत करके कलेक्ट किया है। बट एक ऐसे डाटा भी होता है जो ऑलरेडी अवेलेबल होता है। जैसे ही आप किसी गवर्नमेंट के डायरेक्टरी में जाएं, ठीक है, आप कोई ऑलरेडी प्रीवियस फाइंडिंग है, या मतलब ऑलरेडी पब्लिश आर्टिकल्स हैं, या टू वेरी स्पेसिफिक पॉपुलेशन बेस्ड डाटा है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा, जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है और आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। जब ये आप चूज कर लें, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिस पे मैं बहुत ज्यादा जोर देता हूँ, उसको बोलते हैं प्री टेस्टिंग। मीन्स आप एक पायलट स्टडी करते हैं, इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। इसमें क्या होता है कि आप एक स्मॉल स्टडी करते हैं जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका होती है फुल स्टडी की। मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप 1000 पर्सन्स फ्रॉम पटना, अगर आपको उनका सर्वे लेना है, फॉर एग्जांपल उनसे इंटरव्यू लेना है, तो आप शुरू में ही स्टार्ट ना करें। आप क्या करेंगे, आप एक छोटा नंबर लेंगे पहले। आप 50 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, उस पे वो चीज वो सर्वे करेंगे या क्वेश्चनायर भेजेंगे, उनका रिस्पॉन्स देखेंगे। फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि क्या जो मेरा प्लान है ये सक्सेसफुल है कि नहीं। वो छोटी स्टडी की जो फाइंडिंग आएगी, उसके बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि शुड वी डू दिस स्टडी और शुड वी स्टॉप नाउ, शुड वी चेंज द प्लान। इसको हम लोग पायलट स्टडी बोलते हैं और इसी को हम लोग प्री टेस्टिंग बोलते हैं। इसी तरीके से एनिमल रिसर्च अगर आप कर रहे हैं, तो इसमें अगर आपका एक्चुअल प्लान जो फुल स्केल प्लान है वो 100 रैट्स पे है या 100 माइस पे है, तो उसको एक बार ही ना करके आप क्या करते हैं, शुरू में कुछ माइस लेते हैं। जैसे 20 माइस लिया आपने, उस पे एक्सपेरिमेंट करके देखा, या कोई कंप्लीटली नई चीज पे आप काम कर रहे हैं, आपको उसका डोज डिसाइड करना है, तो रादर देन यूजिंग a random dose on the 100 mice, you will choose 2-3 doses on a small number of mice, and then you will choose the dose which is the most suitable one, non toxic। इससे होता क्या है कि अगर आपने जो पल्ट स्टडी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एवरीवन शुड डू दिस। चाहे यहाँ पे माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस रिसर्चर्स भी हैं, सीनियर लोग भी हैं, जूनियर भी हैं जो रिसर्च स्टार्ट भी कर रहे हैं। मेरी ये एडवाइस है, इफ टाइम परमिट्स पायलट स्टडी जरूर करना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि आपका टाइम सेव होगा, आपके पैसे सेव होंगे, आपकी एनर्जी सेव होगी। सो रादर देन डूइंग ऑन द लार्ज पॉपुलेशन डायरेक्टली, ऑलवेज डू अ स्टडी ऑन द स्मॉल पॉपुलेशन, चाहे वो लोग हों, चाहे वो नंबर ऑफ एनिमल्स हो, या अगर आप कर रहे हैं इन विट्रो हो। दिस शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। देन सिलेक्टिंग द सैंपल, कौन सा सैंपल आपको सिलेक्ट करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपके रिसर्च का पार्ट कौन होगा, हु विल टेक पार्ट इन योर रिसर्च। ओके, अब इसमें यह है कि आप एग्जैक्टली डिसाइड करेंगे कि कौन होगा। अब उसमें आप अप्रोप्रिएट सैंपल लेंगे, जैसे कौन से पार्टिसिपेंट्स आपको चाहिए आपके, फॉर एग्जांपल सर्वे वाले रिसर्च के लिए, क्वेश्चनर्स के लिए। तो यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ विथ योर टीम, योर बॉस। फॉर एग्जांपल अब हम कोरोना में बहुत सारे सर्वेज हुए हैं, तो उसमें भी कैटेगरीज हैं कि ये क्वेश्चनर्स आप किसको भेजना चाहते हैं। आप ओल्ड एज पर्सन को भेजना चाहते हैं, आप यंग पॉपुलेशन को भेजना चाहते हैं। अगर आपने ओल्ड एज चूज किया तो क्या आप मेल्स को भेजना चाहते हैं, फीमेल्स को भेजना चाहते हैं। सो सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट सैंपल अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल, कि हाउ वाज हाउ वाज how the persons were affected psychologically during the corona case, this is a very broad, इसमें आप सारे तरह के लोगों को चूज कर सकते हैं। बट अगर इसमें जेंडर डिफरेंस आ जाता है कि who were more affected, were the males more affected or the females more affected, तो इसमें फिर आपको चूज करना होगा कि आप किस, इसमें भी आप दोनों पॉपुलेशन को भेज सकते हैं। बट अगर और स्पेसिफिक आप करना चाहते हैं कि ओके among the males who were more affected, elder population और द यंग पॉपुलेशन और द चाइल्ड, तो इसमें फिर अगेन सिर्फ मेल्स को भेजेंगे आप, लेकिन तीनों ग्रुप को भेजेंगे। अब उसमें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि अमंग द ओल्डर पॉपुलेशन ज्यादा इफेक्ट कौन लोग हुए थे। वो लोग हुए थे जो 50 से नीचे हैं या 50 से ऊपर है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें करनी पड़ेगी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो था बायस, बायस के बारे में लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो बायस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, द वर्ड बायस इज दैट आप अपनी तरफ से कुछ मतलब फेवरेटिज्म करें अगर, ठीक है, तो ये ह्यूमन नेचर होता है। अगर आप कोई रिसर्च करते हो तो अब बायस आ जाता है। सो
एज अ रिसर्चर, एज अ ऑनेस्ट रिसर्चर, अवॉइड द बायस। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप ना बनाएं, कोई भी ऐसी चीज आप ना करें अपने रिसर्च के दौरान जिसकी वजह से आपकी रिसर्च अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ योर फेवरेटिज्म और नॉन फेवरेटिज्म। ओके, तो इसको हम लोग कहेंगे रिमूविंग द बायस। एंड देन all these typical terms which has to be like explained, I will not go into this, but आप समझ सकते हैं रैंडम और नॉन रैंडम। रैंडम में आप जो सिलेक्शन करेंगे वो बिल्कुल रैंडमली करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि आप किसको सिलेक्ट कर रहे हैं। नॉन रैंडम में आपको पता होगा कि आप किन लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। और अगेन, जो भी आप मेथड चूज कर रहे हैं, जो भी आप सैंपल्स चूज कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बट ऐसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत कॉमन इश्यूज आते हैं इंटरव्यू वाले रिसर्च में या क्वेश्चनर वाले रिसर्च में, कि आप 100 लोगों को भेजते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 70 लोग तो रिप्लाई करेंगे, बट यू एंड अप गेटिंग रिप्लाई ओनली फ्रॉम 30 पर्सन। सो व्हाट टू डू नाउ? आपका क्वेश्चन ये कह रहा था कि मुझे कम से कम 70 लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए और आपको मिला सिर्फ 30 लोगों का रिस्पॉन्स। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से शुरू करें। तो आइडियली देखिए, इसमें कोई गारंटी नहीं है, मतलब हो सकता है आपने 100 लोगों को भेजा, उसमें से 90 लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया, हो सकता है 10 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, बट देयर शुड बी अ बैलेंस इन द प्रिपरेशन विद डिस्कशन टू योर सुपरवाइजर, द एक्सपीरियंस गाइस, कि ठीक है, अगर हमें 50 रिस्पॉन्स चाहिए तो मिनिमम कितने लोगों को हम भेजें। ये सारे डिसीजंस यू हैव टू मेक अकॉर्डिंग टू द प्लेस वेर यू आर। वहाँ पे लोग, फिर इसमें फिर आता है एजुकेशनल इश्यूज भी आते हैं कि भाई अगर हम किसी जगह पे भेज रहे हैं तो क्वेश्चन हमारे इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, कि उर्दू में हो, या सारे तीनों लैंग्वेजेस यूज करें। ये सारे फैक्टर्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आता है रिसर्च प्रपोजल। और रिसर्च प्रपोजल में क्या है कि आपने सारी प्लानिंग कर ली है, अब आप प्रपोज करते हैं कि हम ये करने वाले हैं। ये यूजुअली आप करेंगे इन द स्टार्ट ऑफ द रिसर्च। उसमें आप क्या करेंगे? व्हाट आर यू प्रपोजिंग टू डू, व्हाट्स योर प्लान टू प्रोसीड, एंड व्हाई यू सेलेक्ट दिस स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि आप रिजल्ट्स की बात नहीं करते हैं। जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो एब्स्ट्रैक्ट से शुरू होता है, समरी से, उसमें आप एक इंट्रोडक्शन देते हैं छोटा सा, और उसमें अपने मेथड्स की बात करते हैं कि हम ये करना चाहते हैं और ऐसे करना चाहते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप एक आउटकम, एक्सपेक्टेड आउटकम लिखते हैं कि दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट एट द एंड ऑफ द स्टडी। ये आप स्टार्टिंग ऑफ द रिसर्च में सबमिट करते हैं। यही यही फाइल, जिसको हम लोग सिनॉप्सिस भी बोलते हैं, यही फाइल बाद में एक्स्ट्रापोलेट होकर के, एक्सटेंड होकर के, जब आप इसमें रिजल्ट्स ऐड कर देते हैं, डिस्कशन ऐड कर देते हैं, तो ये आपका फाइनल थीसिस बन जाता है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाता है या आप अपना रिसर्च आर्टिकल बना सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक्स है वो यही होते हैं। देन you move to the actual phase which is phase C, जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आप रिसर्च स्टडी कंडक्ट करते हैं। इसमें आपने सारी प्लानिंग कर ली है, अब यू स्टार्ट कलेक्टिंग द डाटा। अब कैसे कलेक्ट करेंगे डाटा? जो मेथड आपने चूज किया वो आप एक्चुअली करना शुरू करेंगे। अगर आपको इंटरव्यू लेना है तो आप इंटरव्यू लेना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन आंसर भेजना शुरू कर देंगे, एंड सो ऑन। एनिमल स्टडी करनी है तो वो शुरू कर देंगे। बट यहाँ पे आपको इससे बहुत अवेयर रहना है, एथिकल इश्यूज। कोई भी ऐसी चीज आप ना करें जो एथिक्स के अगेंस्ट हो। इसके बारे में वी हैव सम मोर स्लाइड्स इन द एंड, बट दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग, बिकॉज एथिक्स पे आज के दौर में सबसे ज्यादा फोकस है। और एनी एथिकल यू नो नॉन कंप्लायंस कैन एक्चुअली पुट यू इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। लोगों की जॉब चली जाती है, लोग डिप्रेस हो जाते हैं, लोग कुछ साल पीछे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीएचडी में कुछ साल पीछे चले जाते हैं, प्रोफेशनल करियर में हॉल्ट लग जाता है, प्रमोशन नहीं हो पाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इथिकल इश्यूज की वजह से आते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम थोड़ा आगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इज, जब आपने कलेक्ट कर लिया, देन यू स्टार्ट प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग योर डाटा। हाउ, कैसे आपको मिला वो डाटा और क्या मिला, क्या पाया आपने। एंड देन दिस थिंग विच आई सेड इज ऑफन द डिफरेंस बिटवीन अ गुड आर्टिकल एंड अ बैड आर्टिकल। आप अपने डाटा को कैसे एनालाइज करते हैं। आई हैव सेड दिस बिफोर, आई एम सेइंग दिस अगेन। एक डाटा एक इंसान बहुत अच्छे से एनालाइज करके उसको एक हाई इम्पैक्ट फैक्टर में पब्लिश कर सकता है। वही डाटा दूसरा इंसान जो अच्छे से एनालाइज नहीं कर सकता, दैट ही विल स्ट्रगल टू इवन पब्लिश दैट। देयर इज अ रेंज फ्रॉम नॉट नो नो पब्लिकेशन
टू अ हाई पब्लिकेशन, बिटवीन एक बहुत बड़ा रेंज है, एक इम्पैक्ट फैक्टर, दो इम्पैक्ट फैक्टर, डिपेंडिंग ऑन हाउ इज द पर्सन इंटरप्रेटिंग द डाटा। सो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का इंफॉर्मेशन आपको मिला है एंड हाउ यू कैन कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स ऑफ योर रिसर्च। अब इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है। अगेन मैं डिस्कस नहीं करूंगा। डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, क्वांटिटेटिव हो सकता है, इन नंबर्स, क्वालिटेटिव। सो ऑल दिस हैव बीन डिस्कस्ड। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। एंड इन द लास्ट एवरीथिंग इज डन, यू स्टार्ट राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। और ये थीसिस हो सकता है, ये पब्लिकेशन हो सकता है, उसमें आप सारी बातें लिखेंगे, व्हाट यू हैव डन, क्या मिला आपको। एंड देयर this research report or the research article is all different of for different kind of research that you choose. It can be quantitative, it can be qualitative, and depending on your research is quantitative or qualitative, the style of writing will be different, the structure will be very specific, and but एक academic conventions होता है जो आपको follow करना है। Like every college gives you a guideline कि आपको इतने पेजेस का होना चाहिए, अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, ये फॉन्ट होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो स्टैंडर्ड रिसर्च रिपोर्ट होती है इमराड फॉलो करती है, मैं उसको उसको मैंने समराइज किया है, या लिटरेचर में भी इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इमराड लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आई इज फॉर इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देन हम लोग मेथड्स लिखते हैं, देन हम लोग रिजल्ट्स लिखते हैं, उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, एंड देन डिस्कशन लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है नॉर्मल वर्क्स के लिए, इवन फॉर द रिसर्च आर्टिकल्स ऑल्सो। देन बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, जैसे रिव्यू आर्टिकल्स हैं, बुक चैप्टर्स हैं, उसमें ये फॉलो नहीं होता है, वो एक सिंपल लिटरेचर की तरह जाता है जिसमें आप शुरू करके एंड करते हैं अपनी बात को। तो ये सारे स्टेप्स हो गए, और हम आगे बढ़ते हैं मेडिकल रिसर्च की तरफ, क्योंकि हम लोग आज जो जो यहाँ पे ऑडियंस है ज़्यादातर मेडिकल रिसर्च की हैं, और क्या स्ट्रेटजीज हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए, क्या मेथड फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। और इसमें सबसे पहले डेफिनेशन क्या है मेडिकल रिसर्च की। बेसिक मेडिकल रिसर्च की जो डेफिनेशन है वो ये है, द रिसर्च विच इज कंडक्टेड इन अ मेडिकल स्कूल और अ डेंटल स्कूल और ऑल्सो इन अ वेटनरी स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स for the purpose of finding a deeper understanding of नॉर्मल और पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, रिसर्च आपकी नॉर्मल भी हो सकती है और इन्फेक्टिव रिसर्च भी हो सकती है, जिसको हम लोग पैथोलॉजिकल कहते हैं। और किस लेवल पे आप कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे कर रहे हैं, सेलुलर लेवल पे कर रहे हैं, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिज्म लेवल, डिफरेंट लेवल्स कैन बी देयर डिपेंडिंग ऑन कि लैब कितना एडवांस्ड है, कितना न्यू है, एंड सो ऑन। दैट्स द बेसिक डेफिनेशन। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लाइक यू कैन डू ऑन द सेल स्टडीज, द सेल कल्चर, animal experimentations, okay, and you can use drugs to, you can see the effect of the drugs, and then you can of course do all this biochemical, genetics and physiological investigations. So ये सारी चीज़ें मेडिकल रिसर्च की पार्ट हैं, जहाँ पे हम लोग एक मेडिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोई डिजीज, कोई कंडीशन, कोई डिसऑर्डर को। इसमें ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल इन मेडिकल रिसर्च द स्ट्रेटजीज एंड द मेथड्स यूज्ड टू रीच सच अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी इफेक्टिव एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें ये है कि आप जो भी रिसर्च करना चाह रहे हैं उस पर एक एग्रीमेंट होना चाहिए। जो भी जिस जिस भी कॉलेज में हैं आप, वहाँ की जो एक थिंक टैंक है रिसर्च से रिलेटेड, दे विल ऑलवेज गिव यू अ डायरेक्शन कि भाई देखो, वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो फैकल्टीज हैं, वो टीचर्स हैं, कि देखो अभी के दौर में इस फील्ड की ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो आप इस पे फोकस करो, रादर देन गोइंग इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर एक कॉलेज टीम बना करके एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहे, या दो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, थ्री मेजर प्रॉब्लम्स इन योर फील्ड, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसमें ज़रूरी है इंटीग्रेशन की। अगर हर इंसान अपना अलग अलग काम करेगा तो उनको इंडिविजुअली बेनिफिट तो होगा, वो पेपर्स पब्लिश करेंगे, उनका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन टुगेदर एज अ कॉलेज आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, एज यूनिवर्सिटी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में एक डायरेक्शन दिया जाता है कि अभी आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ आया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा में, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा काम न्यूरो पे था। तो यहाँ पे जो फोकस है लोगों का न्यूरो से रिलेटेड, वो ये नहीं है कि नॉर्मली जो आप करते आ रहे थे कि भाई एक कुछ एनिमल्स लिए, कुछ भी यूज कर लिया, नहीं। इसमें ये है
कि इन्होंने हमसे ये कहा है कि जो प्रेवलेंट डिसऑर्डर्स हैं यूएई में, ठीक है, एमंग द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, आप उस पे फोकस करें। तो अब हम पहले उस पे स्टडी कर रहे हैं कि भाई कौन से डिजीजेज यहाँ पे ज़्यादा हैं। उसके हिसाब से जो भी न्यूरोलॉजी के ग्रुप में जो भी रिसर्चर्स हैं, वो उसी फील्ड पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स डालेंगे, उनको फंडिंग आएंगे, उसी पे काम करेंगे। तो एक इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से द रिजल्ट जो आपको मिलता है वो वो टेस्टेबल होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि वो रिपीट हो सके, और मेथड्स जो है ऐसे होने चाहिए कि आपको डाटा मिले। कभी-कभी मेथड आप ऐसा चूज़ करते हो कि आपको डाटा ही नहीं मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है मेथड ऐसा चूज़ करो कि आपको डाटा मिले, और एक लॉजिक होना चाहिए फाइंडिंग में आपके। इफ द फाइंडिंग इज़ इलॉजिकल, इट्स नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। सिमिलरली जो आपका आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए। एंड दिस प्रॉम्प्ट्स द यूज़ ऑफ एडिक्वेट इफेक्टिव मेथोडोलॉजी। ऐसे मेथड्स आप यूज़ कर सकें जो बहुत इफेक्टिव हो, बहुत एडिक्वेट हो, आपको बहुत ही अच्छी रिसर्च दे सकें। अब लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें, स्पेसिफिक एम्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आपके पेपर में होनी चाहिए, ठीक है? गोल जो होगा आपका वो रिफ्लेक्ट करेगा एक विजन जो आप करना चाहते हैं लॉन्ग रन में। ऑब्जेक्टिव्स जो होगा वो आपको इमीडिएट आउटकम्स देगा। तो आप ये कह सकते हैं कि गोल एक होगा आपका, इस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास मान लो कि 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है? ए, बी, सी। तो एक बड़ा गोल होगा, उस गोल को अचीव करने के लिए आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स बनाए, ए, बी एंड सी, एंड आफ्टर दिस हर एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपका कुछ एम होगा। तो ऑब्जेक्टिव ए को अचीव करने के लिए आपके 3 एम होंगे फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव बी को अचीव करने के लिए आपके पास 2 एम होंगे, ऑब्जेक्टिव सी को अचीव करने के लिए आपके पास 2 एम होंगे। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। गोल, सिंगल गोल, 3 ऑब्जेक्टिव्स एंड मे बी फॉर एग्जांपल 7 एम्स। तो एम्स जो होंगे ना वो बहुत ही स्पेसिफिक होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, डेली, वीकली और मंथली आप बना सकते हैं कि आज मुझे ये करना है, इस हफ्ते मुझे ये अचीव करना है, इस पूरे महीने में मुझे ये अचीव करना है। तो 1 महीने में आपने ये दोनों एम्स को अचीव कर लिया, तो आपका ऑब्जेक्टिव सी पूरा हो गया। इसी तरीके से आप और एम्स को अचीव करेंगे यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव बी पूरा हो जाएगा। ये तीनों एम्स अचीव करेंगे आप तीसरे महीने में, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव ए अचीव हो गया। And then when all these three is achieved, then you achieve the main goal of your research। तो ब्रेक डाउन करना चाहिए। और आज के दौर में जो एक प्रॉब्लम आ गई वो ये आ गई कि बहुत डिजिटल हो गया है, बट रादर देन राइटिंग ऑन योर मोबाइल और योर कंप्यूटर्स, इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट ऑन अ पेपर। यानी जब पेपर पे आप लिख के अपने सामने लगाते हैं लैब में गोल, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, और जब उसको आप टिक करते हैं, क्रॉस करते हैं, उसका एक अलग इफेक्ट जाता है कि आप रियल टाइम में क्या कर रहे हैं। इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करें सब लोग जो भी रिसर्च कर रहे हैं। इसमें वही बातें हैं, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा जो अभी डिस्कस कर लिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा फोकस करें आप लोग, ज़रा सा ध्यान दें कि आप जो रिसर्च टॉपिक चूज करते हैं अप्रोच क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 3 अप्रोचेस मेंशन किए हैं कि यूजुअली जब हम चूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले चीज़ जो आती है, वो क्या आती है? हम एक ऐसा टॉपिक चूज़ करना चाहते हैं जो बहुत हॉट हो, बहुत ट्रेंडिंग हो। जैसे आजकल चैट जीपीटी का चल रहा है। अब सब लोग ये चाहेंगे कि कुछ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करें, अगर अलाउ करता है तो। या अगर बहुत स्पेसिफिक भाई कोई एक डिज़ीज़ है, कुछ भी नया पेपर पढ़ा, कोई नई न्यूज़ सुनी, तो हम उसमें अट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई बहुत अच्छा सा एक पब्लिकेशन आया है बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर में, तो हम ये कोशिश करने लगते हैं कि हम भी कुछ ऐसा ही काम करने लगें, ठीक है? लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि एक हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक, एक नया पब्लिकेशन आपको गारंटी करे सस्टेन्ड रिसर्च। दिस मेथड डज नॉट जनरेट सस्टेन्ड रिसर्च ऑफ हाई क्वालिटी एंड ओरिजिनल। रीज़न इसका क्या होता है, जो मेन वजह होती है कि आप कुछ काम कर रहे थे, एक काम आप करते चले आ रहे थे 6 महीने से, आपने एकदम से कुछ नई चीज़ पढ़ ली और आप उससे अफ़ेक्ट हो गए, और आपने चाहा कि इस चीज़ को अपने काम में इंट्रोड्यूस कर दें। तो उससे होता क्या है कि आप जो काम कर रहे थे, जो फर्स्ट ऑर्डर वो होता है, जो मेन काम कर रहा होता है, वो क्या करता है कि इस वजह से कि यार कुछ नया करें, उसका जो पुराना काम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है? और उसकी वजह से क्या होता है
कि उसका जो पेपर होता है वो बहुत लेट पब्लिश होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैंने कहा आपसे, टू लैब्स माइट बी डूइंग द सेम वर्क एट द सेम टाइम। तो आपने कुछ नया करने के चक्कर में यू टुक मोर टाइम एंड द अदर लैब पब्लिश द सेम वर्क बिफोर you. This has happened, to someone very close to me. One of my classmates is in US. He joined the Purdue University in 2007, and आफ्टर 1.5 year ही कॉल्ड मी। उन्होंने मुझे उसने मुझे कॉल किया कि यार बड़ा गड़बड़ हो गया। मैंने, क्या हुआ भाई? कहने लगे, मैं 1.5 साल से जो काम कर रहा था यहाँ यूएस में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में, सेम वही काम, एग्जैक्टली वही काम यूके के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक टीम ने पब्लिश कर दिया, एग्जैक्टली वही काम। अब ये लोग बहुत एडवांस लेवल पे काम करते हैं, जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज होते हैं। तो रिजल्ट क्या हुआ इसका? उसका जो 1.5 साल का वर्क था वो पूरा जीरो हो गया, कंप्लीटली नलीफाइड। अब जो है उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ा, फिर से उसने नया टॉपिक चूज किया, फिर से उसने सारी चीजें की, एंड देन ही वेंट ऑन टू डू हिज पीएचडी इन 7 और 8 years। सो दैट दैट वाज हिज बैड लक, उसका बैड लक था। बट अगर प्लानिंग आप अच्छी करेंगे तो इंशाल्लाह ये नहीं होना चाहिए। ही वाज नोइंग दैट द अदर लैब इज डूइंग, हिज बॉस वाज नोइंग, बट दे वर थिंकिंग दैट दे विल बी एबल टू पब्लिश बिफोर देम, बट द अदर टीम पब्लिश्ड अर्लियर देन देम। एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये होता है कि शुरू में जो आपको बड़ा इनक्रेडिबल लग रहा है, बड़ा हॉट लग रहा है कि यार तो बहुत हॉट है, बाद में जब आप उसको बहुत गौर से देखेंगे तो इन रियलिटी इट्स एक्चुअली लेस सिग्निफिकेंट। सो वो दिखता तो हॉट है, ट्रेंडिंग है, लेकिन वो एक्चुअली होता नहीं है। तो ये अप्रोच ना यूज करें। आई विल नॉट एडवाइस टू यूज दिस अप्रोच। क्या अप्रोच यूज होना चाहिए? रियलिटी में देखें आप कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं और क्या कर सकते हैं। डोंट प्लान समथिंग विच इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। एक अप्रोच ये है, डोंट डू दिस। सेकंड अप्रोच जो होता है उसमें क्या करते हैं लोग, ये जो डिसीजन लेते हैं वो प्योरली ऑन फंडिंग लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास 1 लाख रुपए हैं और इस 1 लाख रुपए में हम यही काम कर सकते हैं, ये भी अवॉइड करना है। Funding is very important, but it should not be the only factor. I'm talking about only factor. Deciding only depending on funding should be avoided. बहुत सारे फैक्टर्स और हैं जिसको देखना चाहिए, बट फंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अफेक्ट करता है लोगों को, लैब्स को, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं उसके बाद। सो एज आई सेड, फंडिंग इज वेरी एसेंशियल, बट इट्स वेरी एसेंशियल बट नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ डिफाइनिंग द रिसर्च एरिया गोल्स एंड एम्स। इतना ज्यादा उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें कि हर चीज आप फंडिंग के हिसाब से कर रहे हैं, और फैक्टर्स को भी आप साइड में को भी आप ध्यान में रखें। The best approach that is to choose a research topic is this one, which I always advise whoever asks me, discuss me, to my students in the course, is think about the significant aspect of a research project. Okay, सिग्निफिकेंट क्या है, कौन सा एरिया लेस डेवलप्ड है, कौन सा एरिया चैलेंजिंग है। भाई चैलेंजिंग का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस एरिया में काम कर रहे हैं, इफ यू आर वर्किंग इन दिस एरिया हैज द पोटेंशियल टू गिव मी अ गुड पब्लिकेशन। ओके, व्हाट इज स्कॉलरली एक्साइटिंग, आप एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं, कौन चीज आपको एक्साइट कर रही है। क्योंकि अगर आप एक्साइटेड होंगे, अगर आप खुश होंगे, करने वो काम करने में आपको अच्छा लगेगा, देन उस काम को आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। एंड इसमें से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं विच आर नोट वर्दी इन टर्म्स ऑफ द बायोलॉजी एंड मेडिकल इम्प्लीकेशंस। सो अगर आप इस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या ये प्रॉब्लम आपको एक्चुअली एक अच्छी चीज दे रहा है। सो दिस अप्रोच of being real, being in your control is the best approach of choosing a research topic. So please try to follow this approach. Now, जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जब आप प्रोसेस शुरू करते हैं अपना, तो इसमें बड़ा एक आजकल जो एक ट्रेंड चल गया है कि भाई हर चीज़ इंटरनेट पे है, तो लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट पे जाते हैं और कुछ पेपर सर्च करते हैं, उसको पढ़ते हैं और फिर उसी के बेस पे अपना प्रॉब्लम। बट दिस इज नॉट राइट। सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स पे डिपेंड ना करें, जरूरत पड़े आप लाइब्रेरी जाएं, जरूरत पड़े आप पुराने पेपर्स पढ़ें। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको जरूरत हो तो आप 100 साल पुराना पेपर भी पढ़ें। और मैं इस चीज का, आई एम अ वेरी बिग एडवोकेट ऑफ गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल रिसर्चर, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल गया है, हर जर्नल ये बोलेगा आपसे कि लेटेस्ट साइटेशन दो, नया साइटेशन दो, पिछले 5 साल के दो, पिछले 10 साल के पेपर्स को साइट करो। ठीक है, दैट्स फाइन, बट मेरा ये कहना है कि आइंस्टीन ने जो फाइंडिंग, फॉर एग्जांपल, भाई वो फाइंडिंग तो उसी की फाइंडिंग है, तो आइंस्टीन को क्रेडिट हम ना दें और एक ऐसे पेपर को क्रेडिट दें हम जो आइंस्टीन की बात कर रहा है 1 साल पहले।
उसको हम कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। लेकिन चूंकि आज के ज़माने में दिस इज़ अनअवॉइडेबल, द जर्नल विल आस्क यू टू साइट अ न्यू पेपर। तो मैं क्या एडवाइस देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को या अपने जूनियर्स को या टीम को, ओके यू साइट अ न्यू पेपर बट ऑल्सो साइट द ओरिजिनल पेपर, क्योंकि उसका जो क्रेडिट है वो मिलना चाहिए, दैट पर्सन डिजर्व्स दैट क्रेडिट। दोनों एक चीज़ के आप दो साइटेशंस दे दें, एक ओरिजिनल बंदे को दे दें जिसने एक्चुअली वो चीज़ डिस्कवर की थी, एक आप नया पेपर डाल दें जो उस चीज़ की बात कर रहा है, दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा ज़रूरी चीज़ है। And then put your ideas and thoughts concerning the rationale for doing the research and the arguments for selecting specific methods. We have discussed these things and think broadly. थोड़ा broad सोचें और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे। रेशनल क्या है, रिसर्च रेशनल क्या है, ठीक है। रेशनल जो होता है सेट ऑफ रीजंस एंड लॉजिकल बेसिस, जिसके हिसाब से आप अपना एक्शन को तैयार करेंगे, अपने बिलीफ पे जाएंगे, ठीक है। अब आपने ये रीजंस लॉजिक ढूंढ लिया, इसको आपने एक रिसर्च को डिजाइन कर लिया, और जब ये सारी चीजें कर देते हैं, जब रिजॉल्व कर देते हैं, तो सिग्निफिकेंस दिखती है उस काम की, और उसके बाद आप स्पेसिफिक एम्स डिजाइन करते हैं। देन यू कैन से दैट विच एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर योर फील्ड, जो कि हमें एडवांस अंडरस्टैंडिंग देगा आपके चूजन एरिया ऑफ रिसर्च के लिए। तो that's called research rationale, and then experimental strategy and methods, okay। अब ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं, बट एक जो बात इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ, ये लास्ट के दो पॉइंट्स हैं कि वट एवर स्ट्रेटजीज आर यू चूजिंग, ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रूशियल टू द अल्टीमेट सक्सेस। इसका मतलब क्या होता है कि कभी कभी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, रिसर्च क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा बनाया, बड़ी अच्छी आपने प्लानिंग की, सारी चीजें आपने बहुत अच्छा तैयार किया, लेकिन जो मेथड्स आप यूज कर रहे हैं वो आपने बहुत ही गलत मेथड यूज किया। सो व्हाट हैपेंस इज दैट एन inadequate method can spoil a whole project with same hypothesis। सो आपकी हाइपोथेसिस बहुत अच्छी थी, आपकी हाइपोथेसिस बहुत अच्छी थी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन जो मेथड्स आपने चूज किए अपने एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए वो बहुत ही गलत चूज किया, जिसकी वजह से योर हाइपोथेसिस इज स्पॉइल्ड। इसका उल्टा भी ट्रू है, कभी कभी क्या होता है कि आपकी हाइपोथेसिस बहुत वीक थी, बहुत अच्छी नहीं थी, हम उसको इनसिग्निफिकेंट कह सकते हैं, लेकिन जो आपने मेथड्स चूज किए वो बहुत अच्छे मेथड्स चूज किए, बहुत इनोवेटिव मेथड चूज चूज किया आपने। सो बिकॉज ऑफ दिस, इवन दो योर हाइपोथेसिस वाज नॉट सो सिग्निफिकेंट, आपको कुछ ऐसी फाइंडिंग्स मिल जाएगी अनएक्सपेक्टेड, जो आपके वर्क को बहुत अलग लेवल पे जा सकती है। सो यहाँ मैसेज ये है, जो मेथड्स आप चूज करते हैं, जो स्ट्रेटजी आप बनाते हैं, वो बहुत अच्छे से डिस्कस करके अपने बॉस, सुपरवाइजर, कोलैबोरेटर्स, दूसरे लैब में जो लोग काम कर रहे हैं, सबसे मिलके एक अच्छा मेथड डिजाइन करें जो आपके हाइपोथेसिस को ऊपर लेके जाए, ना कि नीचे लेके जाए। दीज आर द स्ट्रेटजीज। पॉइंट्स क्या हमें दिमाग में रखने हैं लिटरेचर रिव्यू के दौरान। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंफर्टेबल होते हैं कुछ मेथड्स के साथ, कि ठीक है भाई, मुझे ये मेथड्स आते हैं, हम यही मेथड फॉलो करेंगे अपने लैब में, ठीक है, अच्छी बात है, यू शुड डू दैट, लेकिन इसको हमेशा नहीं करना चाहिए, इट शुड बी अवॉइडेड, डोंट ऑलवेज डू दिस, ओके। इसमें क्या करें, आप थोड़ा सा ब्रॉडली सोचें, है ना, जितना ब्रॉड सोच सकते हैं, और एक्सपर्ट एडवाइस लें, ठीक है। मतलब कि आपके लैब में कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं, दूसरे लैब में कुछ और मेथड्स अवेलेबल हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो उसको सीखने की कोशिश करें, चाहे थोड़ा सा टाइम देना पड़े, उसी शहर में किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में या किसी दूसरे शहर में भी आप जा सके, सीख सके कोलैबोरेटर्स के साथ, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और हमेशा आपके पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपके पास प्लान ए है, आपके पास अगर प्लान ए आपका वर्क नहीं करता है, तो ऑलवेज यू शुड हैव प्लान बी, कि चलो भाई ये नहीं हुआ है तो प्लान शुड बी एबल टू वर्क। सो एक रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए कम से कम दो प्लान बनाएं, प्लान ए अगर अनसक्सेसफुल होता है तो प्लान बी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, बट सम फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई वांट टू डिस्कस। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट स्टडी के बारे में, आई विल नॉट से अ लॉट। इसमें बस मैसेज ये है कि शुरू में आपको कुछ भी पता नहीं होता है, एवरीथिंग इज अननोन, तो रादर देन वर्किंग ऑन अ फुल फ्लेज्ड स्केल, 1000 पीपल, 100 रैट्स, छोटे नंबर से स्टार्ट करें, पहले उसको कर लें, फिर देखें उसके क्या प्रो एंड कॉन्स हैं। If the pros, the advantages are more, go with it.
If the cons, the disadvantages are more, stop the research, change the plan. इसका ये मकसद होता है, ठीक है। और ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं, आई विल नॉट गो अगेन टू दीज थिंग्स। और इसमें ये चीज़ मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। जब आप पायलट स्टडी करते हैं तो आपको इन ये फॉलोइंग कंक्लूजन्स मिलेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, एनी रिकमेंडेड चेंजेस टू द प्रोटोकॉल। आपने एक प्रोटोकॉल बनाया था, एक मेथड डिजाइन किया था, तो जब आपने पायलट स्टडी किया है तो कुछ चेंजेस मिलेंगे आपको। अब नंबर वन क्या हो सकता है, एक रिजल्ट ये आ सकता है, द मेन स्टडी इज नॉट फिजिबल। मतलब कि पायलट स्टडी की, छोटे स्टडी की के रिजल्ट्स इतने बुरे आए हैं कि कंप्लीटली आउट ऑफ योर एक्सपेक्टेशन, जिसका मतलब ये है कि आप करना ही नहीं चाहिए, तो आप वहीं पे स्टॉप कर दें, ठीक है। छोड़ दो उस काम को, उस काम को बड़े लेवल पे ना ले जाएं, फंडिंग्स और टाइम, अपना एनर्जी वेस्ट ना करें, दैट्स वन थिंग। तो आप यहाँ पे क्रॉस करें बिल्कुल, आप दूसरा प्लान ढूंढें। देन दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि चलो ठीक है, जो मेन स्टडी है वो की जा सकती है, बट सम चेंजेस आर नीडेड, कुछ हमें चेंजेस करने हैं। तो पायलट स्टडी विल गिव यू ऑल दोज इंफॉर्मेशन जो आपको चेंज करना है। देन एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा अच्छा पायलट स्टडी हुआ है, बहुत से रिजल्ट्स आए हैं, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसा पायलट में किया है एग्जैक्टली उसी को रिपीट कर दें हम मेन स्टडी में। ये सबसे अच्छा, जो लकी लोग होते हैं उनके साथ ये होता है, जो कि बहुत मुश्किल है। द मेन स्टडी, लास्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि चलो अब मेन स्टडी आप कर सकते हैं, फिजिबल है, लेकिन बहुत क्लोजली आपको मॉनिटर करना होगा फॉर एनी पॉसिबल चेंजेस। तो पायलट स्टडी करने के बाद आपको ये चारों ऑप्शंस मिल सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन क्या आ रहा है, देन यू आइदर मूव फॉरवर्ड और यू स्टॉप और you make the changes in your planned study. All right, so this is done, and some rules of the basic medical research project. Okay, so इसमें भी थोड़ा जल्दी चलेंगे। हम लोगों को जो फोकस करना है वो रियल प्रॉब्लम से फोकस करना है, ठीक है। रिसर्च अगर आप रियल प्रॉब्लम से नहीं करेंगे तो सिग्निफिकेंट रिसर्च नहीं होगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आज के ज़माने में आप सबको भी आइडिया होगा, जो पब्लिकेशंस आ रहे हैं, रैंडम पब्लिकेशंस आ रहे हैं, खास करके जो ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसमें से 99% जो आर्टिकल्स हैं वो एक्चुअली रियल प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करती है। और इसका मतलब ये है जो ह्यूमन हेल्थ को पॉजिटिवली अफेक्ट नहीं कर रही है। तो कोशिश ये करें हम लोग कि कुछ रियल प्रॉब्लम को चूज करें और थोड़े से बोल्ड चॉइसेस लें, ठीक है, कि भाई ये चीज करें। आपको लगेगा यार करें कि नहीं करें, करें, थिंक अबाउट इट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ चूजिंग बिग चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। टाइम परमिट करता है, टीम अच्छी है, फंडिंग है, तो थोड़े बड़े चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को चूज करने की कोशिश करें। और इसमें भी ये है कि थोड़ा सा स्ट्रेटजी अच्छा बनाएं आप। एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल, है ना, लोगों को ये लगता है कि मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा। ये होता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ हैविंग आवर आइडियाज स्टोलन। ओके, इसमें होता क्या है कि इस वजह से, इस डर से कि हम अपने आइडिया को किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, हम जो है कोलोबरेशन करना बंद कर देते हैं, है ना, बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। यू शुड डिस्कस योर आइडिया विथ योर पीयर्स, योर कोलोबरेटर्स, बिकॉज जो बेस्ट आइडियाज होते हैं वो तभी डेवलप होते हैं जब आप बहुत अच्छा डिस्कशन करते हैं अमंग अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट। तो थोड़ा सा इसमें ओपन अप्रोच होना चाहिए, है ना, ओपन अप्रोच हो, कोलोबरेशन अच्छी हो, ताकि आपके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट बन सके, अच्छे आइडियाज आ सके। सिक्रेसी अगर आप रखेंगे अपने प्रोजेक्ट में तो ये आपको जो है बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। बहुत ज़्यादा सीक्रेट रहेंगे, लोगों से डिस्कस नहीं करेंगे, चुपचाप करना चाहेंगे, एकदम से उसको पब्लिश करना चाहेंगे, इट डजंट इज नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। मैंने देखा है लोगों को, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। एक हमारे सीनियर जो है यूएस से आए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो हमने उनसे कहा भाई आप आए हैं, हम लोग को आइडिया दें, क्या किस चीज़ पे काम करें। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि यार देखो, मेरे पास जो आइडिया है वो बड़ा ही सीक्रेट है, मतलब मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। मैं इसको खुद ही प्रोजेक्ट लिखूंगा, इंडिविजुअल लिखूंगा, और मैं खुद ही फंडिंग लेकर आऊंगा, फिर मैं काम करूंगा। तो उनका ये प्लान था। रिजल्ट क्या हुआ उसका कि आज 10 साल हो गए हैं, उन साहब के पास एक भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। और हम जो इंडिया से पढ़ के और डायरेक्टली यहाँ सऊदी अरेबिया गए थे, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्रोजेक्ट्स भी किए, मिल के किए। एक प्रोजेक्ट मेरा ऐसा भी था जो 4 करोड़ का था, मिल के किए।
तो मतलब मिलके करने से एक अलग चीज़ आती है। और उनको छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स मिले, उनका आइडिया पता नहीं फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज़ आज तक उन्होंने उसको शेयर नहीं किया किसी के साथ। सो दैट्स हिज चॉइस, बट माय एडवाइस इज़ दैट इससे डरे ना आप, खुल के बात करें, टीम बना के करें। और ये सारी चीज़ें हैं जो वी शुड डू। एथिकल प्रिंसिपल्स बहुत ज़रूरी हैं। नॉन साइंटिस्ट को आप इन्वॉल्व करें ज़रूर, क्योंकि ये आपको बहुत तरीके से हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिस्ट के अलावा भी लोग करते हैं। टीम के पास बिल्कुल क्लियर रोल होना चाहिए, है ना? हमारे पास एक ऐसा काम हो जो आप रेप्लिकेट कर सकें, और बहुत सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस कर लिया है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, कैलकुलेटेड रिस्क लें। एक कुछ रिस्क लेना भी ज़रूरी है, बट वो थोड़ा-सा कैलकुलेटेड होना चाहिए। तो ये बातें फ़ोकस करें। अब ये लास्ट में 2-3 चीज़ें और हैं, इसको करके हम एंड करेंगे लेक्चर को। टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे में ये बिल्कुल मैंने नया बनाया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब बिज़ी हैं, क्लासेस हैं, जो लोग मैरिड उनकी फैमिली लाइफ़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्या करता है कि आपको फ़ोकस मेंटेन करने में हेल्प करेगा, अगर आप उसको इफ़ेक्टिवली मैनेज करेंगे, और यू विल बी एबल टू अचीव स्पेसिफिक गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़, ओके? अब इसके कुछ मेथड्स हैं जो हम डिसाइड करते हैं। अब इसमें एक जो सबसे बड़ा वो होता है टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे बड़ा एक हिंड्रेंस होती है, द बिगेस्ट हिंड्रेंस इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। ये एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एन एक्ट ऑफ डिलेइंग और पुटिंग ऑफ टास्क अंटिल द लास्ट मिनट और पास द डेडलाइन। मतलब 20 तारीख लास्ट डेडलाइन है किसी चीज़ को करने का, हम क्या करते हैं कि डिलिबरेटली उसको पुश करते जाते हैं। ये सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे लेकिन हम लोग को बचना चाहिए। जैसे कोई एक काम आया है, आपके पास 20 दिन है, रादर देन doing the same thing on the 20th day, try to do this work earlier। ये चीज़ रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है एक्चुअली। तो ये आपको हेल्प करेगा इफ यू allocate time to the activities on the daily basis, weekly basis, it will help you to achieve the goals successfully। टाइम मैनेजमेंट के कुछ टेक्निक्स हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। सम अप्रोचेस हैं लाइक मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज, सेट योर गोल्स, प्रायोरिटी लिस्ट, प्लानिंग, डेलीगेशन एंड एनालिसिस ऑफ द टाइम स्पेंड। क्विकली देखते हैं इसको। हम लोग बहुत ऑनेस्टली अपनी एक्टिविटी को मॉनिटर करें और उन हैबिट्स के बारे में ध्यान दें जो आपके काम को लेस फोकस बनाता है। डिसिप्लिन की कमी आती है जो आपके काम को इंटरप्ट करना है। जैसे कि आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, देन यू आर कंटिन्यूअसली लुकिंग एट योर मोबाइल एंड समथिंग, ऑनेस्टली अपने हैबिट को ढूंढें कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके करने की वजह से आपका काम बार बार इंटरप्ट हो रहा है, और धीरे धीरे कोशिश करें स्लोली एंड स्टडीली टू improve these habits and not do these things while you are actually working on something very important। this will increase the focus and productivity। ये करने की कोशिश करें। ये हम बात कर चुके हैं, गोल्स बनाएं, उसको लिखें एक्चुअली, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, इसके बारे में बात हो चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी बनाएं कि आपने अगर 5 गोल्स बनाए हैं या 5 एम्स बनाए हैं, सबसे पहले कौन सा करें, आज कौन सा करें और कल कौन सा करें, और डुअल टास्किंग को अवॉइड करें। एक साथ में 2 गोल्स को अचीव करने की कोशिश ना करें। पहले एक गोल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर वर्क करें, जब वो हो जाए देन द सेकंड गोल, डिपेंडिंग ऑन योर प्रायोरिटी। प्लानिंग, मैं इसके बारे में बोल चुका हूँ। पूरी लिस्ट बना लें अपने आप अच्छी तरीके से, ये 10 काम हमें करने हैं। टाइम को अच्छी तरीके से यूज़ करें, उस जगह पे काम करें जो जगह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कभी-कभी ऐसा होता है कोई एक ऐसा काम है जो आपका ऑफ़िस में नहीं हो सकता, उसको आप कहीं और जाके करें। अपने सेल फ़ोन को ऑफ करने से अगर आपको काम करने में आसानी होती है, वो करें। देन डू रिवार्ड योरसेल्फ फॉर डूइंग समथिंग। कोई एक अच्छी चीज़ आपने अचीव कर ली, देन रिवार्डिंग योरसेल्फ इज़ अ गुड थिंग। लाइक एक अच्छा एम आपने अचीव कर लिया, देन गो एंड सी द सोशल मीडिया फॉर 10 मिनट्स, reply to the non-urgent mails for 10 minutes, walk around, go to the canteen, listen to the music, whatever you want to do। Rewarding yourself is very important in an honest way again। Then delegation, ये टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपने ऑथोरिटी को आप ट्रांसफर करें अपने स्टाफ पे। जो भी आपके टीम में लोग हैं उनको आप छोटे छोटे एम्स दें,
तुम ये करो, तुम ये करो, और इससे क्या होगा, एक टीम वर्क होगा, डेलीगेशन से आपको बहुत मदद मिलेगी। और जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, जो मेन रिसर्चर होता है, जो लैब का हेड होता है, वो इस चीज़ को करता है आमतौर पे। और एज अ रिसर्चर, एज अ जूनियर स्टूडेंट्स, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम इस चीज़ को फॉलो करें। ठीक है, कि जो हमें काम दिया जा रहा है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम करें। अब यहाँ पे हम सीनियर रिसर्चर्स की बात करें, उनके पास नई-नई चीज़ें आती रहती हैं। इन्विटेशन आएगा पेपर लिखने के लिए, चैप्टर लिखने के लिए, कहीं लेक्चर देने के लिए। तो उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप ये इस क्वेश्चन का जवाब दें कि विल माय पार्टिसिपेशन इन दिस एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू माय प्रायोरिटाइज्ड गोल्स। अब जैसे आज मेरा ये लेक्चर है, ठीक है? अगर मैं कोई एक बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ और इस लेक्चर की वजह से वो काम डिस्टर्ब होगा, तो मैं ये ऑनेस्टली कहूँगा कि भाई अभी नहीं, बाद में, फॉर एग्जांपल। तो ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी एबल टू से नो। नो करना थोड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल है, बट यू शुड बी एबल टू से नो टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके काम को अफेक्ट करे। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट थिंग, अपने जो आपने वक्त गुजारा का है उसको आप एनालाइज करें कि भाई आपने जो भी टाइम फ्रेम लिया था उसमें वो काम किया कि नहीं किया, क्या मसले आए, उसको कैसे कम कर सकें, अपने देर करने की आदत को सही करें। सो अल्टीमेटली इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट विल रिजल्ट इन प्रोडक्टिव रिसर्च प्रोजेक्ट। एंड देन एथिक्स के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। एथिक्स, अगर आप एक वर्ड में कहना चाहें, इज जस्ट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ the other side. Okay, so I will not go into this slide a lot. इसमें आपको ध्यान देना होगा कि आप अगर ह्यूमंस पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसकी डिग्निटी है को मेंटेन करें। उनसे पूछें, इन्फॉर्म कॉन्सेंट होना चाहिए कि भाई हम आपसे अगर ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो हम इसको कहाँ यूज़ करेंगे। जो वल्नरेबल पर्सन्स हैं, मेंटली स्टेबल लोग हैं, उनका ख्याल रखना होगा आपको। कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्राइवेट हैं, कॉन्फिडेंशियल हैं, इंटीमेट क्वेश्चंस हैं, उसको आप रिवील नहीं कर सकते हैं उस डाटा को, उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। जस्टिस होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होना चाहिए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग हार्म्स एंड द बेनिफिट्स। हर हाल में द बेनिफिट शुड बी मोर देन द हार्म। अगर कोई भी ऐसा रिसर्च आप कर रहे हैं जिसमें आपको ये लगता है कि बेनिफिट कम है, हार्म ज़्यादा है उस पर्सन को, देन स्टॉप दैट रिसर्च, मूव अहेड और प्लान चेंज करें। और बेनिफिट्स ज़्यादा होने चाहिए हार्म के मुकाबले। और ये सब सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आ रही है पिछले स्लाइड में, प्लेगरिज्म। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड में। और ह्यूमन एथिक्स का ख्याल रखेंगे, एनिमल एथिक्स का ख्याल रखेंगे, सारे रूल्स को फॉलो करेंगे अच्छी तरीके से। और जब भी आप एनिमल एक्सपेरिमेंट बनाएंगे तो आप मेक श्योर करें कि आप अननेसेसरी रिपीटिशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और आपको करने नहीं दिया जाएगा। जैसे I said, जो कमिटी होगी वो आपको कभी भी एक ऐसा काम करने नहीं देगी जो ऑलरेडी किया जा चुका है। तो ये चीज़ का ख्याल रखें। और हर इंस्टीट्यूट में एथिक्स कमेटी होती है, एक सेंट्रल होती है, एक लोकल होती है। लोकल कॉलेज लेवल पे होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है। दोनों जगह से आपका प्रपोजल पास होना चाहिए। वो आपके प्रपोजल को बहुत डीपली पढ़ते हैं, उसके बाद वो बहुत सारे इंस्पेक्शंस करते हैं। और किसी भी पॉइंट पे अगर उन्हें ये लगता है कि कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं which violates the rules of the ethics, they have the power to stop your work. So be very careful in not breaking the ethics, otherwise your time, energy, money all will be spent and your work will be stopped. Okay? Publications, the most important part and probably the last part of my presentation today. ये कैसे करना है? पब्लिकेशंस के बारे में ये है कि a good quality research will be considered successful if you publish it. ठीक है, तो आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरा काम बहुत अच्छा है, और लोगों को भी लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा है, और हो सकता है आपका काम बहुत अच्छा हो, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन इफ यू फेल टू पब्लिश इट, देन योर रिसर्च विल रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। वो एक कहावत है, हम कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपका रिसर्च दिख नहीं रहा है पूरे वर्ल्ड को, देन यू आर अननोन। अब आप चाहे कितना भी क्लेम कर लें, मुंह से आप कितना भी बोल दें, कितना भी क्लेम कर लें, माय रिसर्च इज वेरी गुड,
excellent, outstanding. If you fail to publish it in a good recognized journal, your research will remain unrecognized. Okay, so your research will be considered irrelevant if you don't do this, but it will be considered relevant when if your work is cited well. This is also very important कि आपने अपना काम किया और आपके काम को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपके काम को लोग अपने पेपर्स में साइट कर रहे हैं कि this researcher has done this work and I am following the work of this researcher. So this will give you a good recognition. And a research work which fails to get citation will be considered insignificant. आपने एक रिसर्च की, आपने पब्लिश किया, 5 साल हो गए, आपका रिसर्च साइट नहीं हुआ है. अगर साइट भी हुआ है तो 5 साल में भी 5 times हुआ. दिस मीन्स दैट द रिसर्च दैट यू डिड वाज नॉट गुड, नॉट सिग्निफिकेंट. साइटेशन क्या होता है? साइटेशन इज अ वेरी सिंपल थिंग. जब आप अपने काम में किसी दूसरे के काम को साइट करते हैं, दैट्स कॉल्ड साइटेशन. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस प्लेगरिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस हैज स्पॉइल्ड मेनी करियर्स. और इस पे बड़ा ध्यान देना होगा हम सब लोगों को कि अगर आप किसी और के आइडिया को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटिंग वर्क और आइडियाज फ्रॉम अनदर सोर्स एज योर ओन, मतलब चीज तो किसी और की है बट आप उसको इस तरीके से लिख रहे हैं जैसे ये आपने किया है, ठीक है, विदाउट साइटिंग द पर्सन और विदाउट फुल एक्नोलॉजमेंट. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी की चीज़ों को लें, कहीं से कोई लाइन लें, सेंटेंस लें, कोई डाटा लें, कोई रिजल्ट लें, उसको ज़रूर मेंशन करें कि दिस सेंटेंस, दिस रिजल्ट, दिस डाटा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेपर. और यूजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट इज प्लेगरिज्म. और इसमें सारी चीज़ें आएंगी. इसको थेफ्ट कंसिडर किया जाता है, इसको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कंसिडर किया जाता है. सो इफ अगर कोई ओरिजिनल आपकी चीज़ है, आप कुछ कह रहे हैं, यू डोंट नीड टू गिव रेफरेंस. बट अगर आपने किसी और से कोई चीज़ ली है, यू शुड मेंशन दैट पर्सन्स वर्क. अब ये कैसे करें, हाउ टू अवॉइड दिस. ओके, ये इसके बारे में भी मतलब कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने काम को डिले ना करें, कमिटेड हों, केयरफुल हों और बहुत डिटेल्स में जाएं आप अपनी चीज़ों को लेकर के. ये दिस इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस व्हेन यू आर टेकिंग फ्रॉम अनदर पेपर. कि आपने एक पेपर ढूंढा, आपको एक लाइन लेना है, आपने कॉपी किया और उसको पेस्ट किया. पेस्ट करने के बाद अगर आप उसको उसी फॉर्म में छोड़ देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड प्लेगरिज्म. तो आपको साइड भी करना होगा और पैराफ्रेजिंग भी करना होगा, उसको रीराइट करना होगा अपनी लैंग्वेज में. तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी. और ये सब करने के बाद एंड में यू शुड यूज अ रजिस्टर्ड प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर, नॉट द फ्री वन. फ्री जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं. तो ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, लाइक ऑथेंटिकेट, टर्निटिन, दीज आर गुड. उससे वो आपको बताएगा कि आपके आर्टिकल में कितना ज़्यादा प्लेगरिज्म है. इस पे मैं नहीं जाऊँगा. सम एग्जांपल्स, आई विल स्किप दिस. एंड ये मैंने चेक पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को या अपने कोलैबोरेटर्स को देता हूँ हमेशा कि कैसे अवॉइड करें. तो इसमें हम कोशिश ये करें कि कोई भी इशू ना हो कॉपीराइट से रिलेटेड. ओके, जितने भी फिगर्स आपने बनाए हैं, टेबल्स आपने बनाए हैं, वो आपका ओरिजिनल होना चाहिए. यू शुड मेक द फिगर्स एंड टेबल्स बाय योरसेल्फ. हैविंग सेड दैट, आप ऑलरेडी पब्लिश्ड फिगर्स और टेबल्स भी ले सकते हैं, अलाउड है ये. यू कैन टेक ऑलरेडी पब्लिश्ड फिगर्स एंड टेबल्स, बट आपको उसके लिए प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द पब्लिशर और द ऑथर. So it's allowed, it's permissible to use a published figure and the table, but with a proper permission. And when you run your article on the plagiarism software, make sure that it is below 15%. मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ अपने स्टूडेंट्स और कोलैबोरेटर्स के साथ. यूजुअली दे एक्सेप्ट अप टू 20, और some journals also accept up to 25%. But citing the importance of this, I have put this bar 15%. So 15% से ज़्यादा सिमिलरिटी ना हो पब्लिश आर्टिकल से. और उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसी एक सोर्स का 1% से ज़्यादा ना हो. अब फॉर एग्जाम्पल 15% आ रहा है, ठीक है, अब 15% में 10% जो है एक सोर्स से ही आ रहा है, या इवन 2% भी एक सोर्स से आ रहा है, तो आई डोंट go ahead with that paper. I never agree with that. I tell them that it should not be more than 1% from one source. So ये आप करेंगे तो you are successful. Now the last part, hopefully this is
इट शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन जर्नल सिलेक्शन, आप कौन से जर्नल में पब्लिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज का जो ज़माना चल रहा है उसमें जो लोग नए हैं या रिसर्च से रिलेटेड ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं है, या कभी कभी तो एक्सपीरियंस लोग भी धोखे में आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, दे एंड अप पब्लिशिंग इन अ प्रेडिटरी जर्नल। ओके, अभी क्या है भाई प्रेडिटरी जर्नल, ये वो जर्नल्स हैं जो एक्चुअली रिकॉग्नाइज नहीं हैं, बट बिकॉज ऑफ द रीजन कि भाई मेरे पास टाइम कम है, मेरा प्रमोशन होना है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जल्दी पब्लिश करने के चक्कर में यू गो एंड एंड अप पब्लिशिंग इन द प्रिटी जर्नल। अब होता क्या है, आपने पब्लिश तो कर लिया, अब एक ऐसी चीज है, वंस यू पब्लिश इन अ जर्नल यू कैन नॉट टेक इट बैक। रिट्रैक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस टू योर करियर। So a publication in a predatory journal can severely impact your professional reputation and career. The reputation that you make in many years can all, कहते हैं ना कि आप अच्छा करते रहें और एक बुरी चीज आपकी सारी अच्छाई को खराब कर देती है। So the hard work of many years can be destroyed by a bad, you can say, publication. Many person have lost their job because of publishing in this predatory journal or plagiarism. So we should be very careful और ये करने की कोशिश ना करें, पब्लिश क्विकली। दिस इज द मेन फैक्टर व्हाई वी एंड अप गोइंग देयर। सो प्लान वेल, नेवर हरी, ओके, एंड नेवर पब्लिश इन अ प्रिटी जर्नल। अब सवाल है इसको पहचाने कैसे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, लोग बहुत सारी बातें करते हैं। आपके पास इनविटेशन आए, आप जर्नल की वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, ढूंढते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने अपना एक मेथड तैयार किया है, मैं कैसे चेक करता हूँ, मैं कैसे लोगों को बताता हूँ, आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाउ टू अवॉइड अप्रिटी जर्नल। सो मैं सिर्फ दो वेबसाइट, मैं जर्नल चेक नहीं करता, ठीक है, मैं जर्नल के वेबसाइट पे कभी भी नहीं जाता हूँ। आई नेवर गो टू द जर्नल वेबसाइट। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ ये दो वेबसाइट्स पे जाता हूँ, ओनली दिस टू वेबसाइट्स। उस पे जाके क्या करता हूँ, उस जर्नल का इंफॉर्मेशन चेक करता हूँ मैं। नंबर वन, वेब ऑफ साइंस, which is inside the web of science, that is called Journal Citation Reports, JCR Collaborate। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने तो सुना होगा जरूर। इसकी खास बात क्या है, ये मोस्ट रिकॉग्नाइज है पूरे वर्ल्ड में, और इसमें सिर्फ वही जर्नल्स आपको दिखाएगा जिसका इम्पैक्ट फैक्टर होगा, ठीक है। और अगर किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है, वो जर्नल कभी भी प्रेडेटरी नहीं होगा। तो इसमें जाने के लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और आप फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो इसका लिंक है, अगर इस पर क्लिक करेंगे आप, तो ये आपको वहां ले जाएगा। वहां जाने के बाद आपको करना क्या है, सिंपली आप जर्नल का नाम टाइप करें। अगर वो सर्च होकर के आ रहा है, देन इट्स फाइन, यू कैन सबमिट इन दैट जर्नल। अगर वो सर्च नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ लें कि वो जर्नल इस लिस्ट में नहीं है, उसका कोई इम्पैक्ट फैक्टर नहीं है। एंड दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज, आई ऑलवेज फॉलो दिस, बिकॉज हम लोग जिस लेवल पे हैं, जिस इन यूनिवर्सिटीज में हैं, इनकी कंडीशन ही यही है कि आपका पब्लिकेशन तभी कंसिडर होगा अगर वो वेब ऑफ साइंस इंडेक्स्ड है या उसका इम्पैक्ट फैक्टर है। बट इंडिया में थोड़ा सा कुछ जगहों पे, या कुछ जैसे यूजीसी इंडेक्स पे देखा जाता है इंडिया में, ठीक है, स्कोपस इंडेक्स देखा जाता है। तो इस तरह के जर्नल से अगर आपको सर्च करने हैं, तो एक दूसरा तरीका है सीमैगो। ये इसमें जाएं आप, ये यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, इसमें आपको अकाउंट क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये क्या करता है, जनरल रैंकिंग बताता है। तो इसमें जब आप जाएंगे, आप जनरल को टाइप करेंगे, तो जनरल की इंफॉर्मेशन आएगी। यूजुअली ये स्कोपस इंडेक्स जर्नल रखता है, स्कोपस इज वेल रिकॉग्नाइज्ड, सो दिस इज आल्सो फाइन। तो अगर इन दोनों सर्च के बाहर अगर वो जर्नल आता है, वो कंप्लीटली प्रेडेटरी है, उसको स्किप कर दें, बिल्कुल सोचे भी नहीं उस बारे में। सो फोकस ऑन दीज टू ओनली। So I think this is done, and I like to thank the Almighty, as usual. Because of the Almighty, everything belongs to us. My parents, the family, the teachers, the mentors, collaborators, all my schools. I'm from Gaya, and my basic education is there. Then I moved to the AMU and Department of Biochemistry. Then my job places, I first worked in Mid University Lucknow for a year and a half. Then moved to King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia for 10 years, then joined this university last year. So, heartfelt thanks to all of you for listening the lecture, giving your time, and thank you for the management, Dr. Tanveer, the principal Saab, and Dr. Nazamuddin for inviting me. Thank you so much. Jazakallah khair.